A very good morning to one and all. Children, in the last class, we studied about Earth, our home, isn't it? So, what did we study in Earth, our home? How does the Earth look like? And then we studied about the day and night, and then we studied about the revolution, that is, how seasons happen, isn't it? Then as we are learning all about Earth, today we will start with a second lesson, that is looking at the Earth. Now, half of the things we know about Earth, isn't it? So now we will study about the shape of the Earth, and then how to study about the Earth. Okay, means there are many countries, isn't it? So we can't how to study about them and about the continents and many more things, very interesting things we will be learning in this lesson. So coming to the first point, that is looking at the earth. Now as we look at the earth, so we can't look it like that way only, isn't it? If you want to look at the earth really in real, we need to go into the space like astronauts go. Who are astronaut children? Or astronauts are those people who go into the space. Then uh, they have a very means like when you come to the school, you have uniforms, correct? To go into the space, they have the space suit. Okay, so they wear that and then they go into the space. So that also one by one steply we will learn about them also. So the first thing what we are going to learn is today is looking at the earth. Now what does this mean? Means looking at the earth means just not looking, but learning more and more things about the earth. Now, first of all, we will learn the shape of the earth. How is the shape of the earth? Now, many of them tell that it is round in shape, isn't it? As in olden days, before we don't know anything about any particular thing, what we have to do, we have to understand, we have to know more about that particular thing, and then we will come to know more about that those things, okay, like that way only. But in the olden days, the people who used to live on the, means, people before, means our ancestors, they were very afraid, thinking about what, you know, that if we move a little bit, what will happen, we will fall down, because what was in their mind, that earth is flat in shape, okay, it is like this, it is flat, so that anything wherever, even you must be knowing it, if it is a flat anything which is flat, we tend to fall down. But people were very scared, and they thought that if we move around anywhere, what will happen, we might fall down. So they did not go out of their house, they were inside their house. Then afterwards what happened, you know, that uh, they had that fear of falling down off, because if they travel more far, means what they used to do, you know, they used to go little bit, means little bit, and they used to think that if we go more far than this, more further than this, we might fall down. So there was a Portuguese sailor. Now, what is this sailor? Sailor means who, you know? कौन है सेलर पता है ना आपको? जो बोट में सेल करता है उसे सेलर कहते हैं. तो ऐसे ही there was one person, okay, named as Ferdinand Magellan. Okay, he was a Portuguese sailor. Okay, what he did, you know, about 500 years ago. Okay, what he did, he started with a long journey. ही लॉन्ग जर्नी मतलब बहुत लंबा सफर. ओके, तो वो लॉन्ग जर्नी करने के लिए कैसे आया, अभी सेलर, जैसे ही वे वर्ड बोलती हूँ सेलर, सेलर यानी कि मैंने बताया आपको कि बोट में जो भी जाता है वो सेलर. तो बोट से अगर वो जा रहा है तो एक लंबा जर्नी ले रहा है. तो व्हाट ही डिड, यू नो, he started his journey, okay, from one point. अब one point मतलब assume, मतलब सिर्फ बता रही हूँ. ओके, यहाँ से अगर उन्होंने स्टार्ट किया है, अब क्या मैंने बताया कि वो जो पोर्चुगीज सेलर है, उन्होंने एक लंबी जर्नी स्टार्ट की. एक स्टार्ट एक पॉइंट से किया,
तो अगर ये पॉइंट से किया, he sailed like this way, he came back to this point only. Okay, he came back to this point only. मतलब वो वापस यहाँ से ही स्टार्ट किया था और यहीं पर आके खत्म हुआ उसका जर्नी। तो इससे क्या साबित हुआ? Means by this what we understand that earth is round. अगर अर्थ फ्लैट रहता तो यहाँ से स्टार्ट किया होता तो कहाँ पे would he come again back on this same point? मतलब जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पर आके वो क्या रुकता? नहीं। अगर फ्लैट रहता तो ऐसा नहीं होता, isn't it? So this proved that earth is round in shape. कैसा है? अर्थ का शेप राउंड इन शेप। but later on when astronauts, उसके बाद में after some time when these astronaut, what I told you, who are astronauts, the people who go into the space are called as astronaut. जब उन्होंने, अभी ये तो हो गया, उसके बाद में एक एक आविष्कार होने लगे। आविष्कार मतलब क्या है? डिस्कवरिंग समथिंग। ओके, सो वो आविष्कार करने के लिए जब जैसे एक स्टार्ट हो गया, तो जो एस्ट्रोनॉट्स है जब वो स्पेस में चले गए, मींस व्हेन दे वेंट इनटू द स्पेस, दे सॉ फ्रॉम द स्पेस समथिंग ब्लू एंड ब्राउन इन कलर, ग्रीन इन कलर। व्हाट वाज दैट? ओके, और मैंने जैसे बताया था आपको कितने प्लैनेट्स हैं हमारे? सी, ओके, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर? देयर आर 8 प्लैनेट्स। तो जैसे ही वो स्पेस में से जाके वो देखने लगे, दैट टाइम दे सॉ समथिंग ब्लू इन कलर। तो व्हाट वाज दैट ब्लू? इट वाज नथिंग बट आवर अर्थ। ओके, तब अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? व्हाई अर्थ इज कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट? बिकॉज हमारा जो अर्थ है वो बहुत अर्थ पे हमारे बहुत सारा पानी है और लैंड बहुत कम है, तो इसीलिए ये ब्लू इन कलर दिखता है जब हम लोग स्पेस से उसे देखते हैं। व्हेन वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द स्पेस, व्हाट इट लुक्स लाइक ब्लू बिकॉज देयर इज मोर वाटर देन द land on the earth, so it is called as blue planet. And even it is called and earth is not only one planet which has the life on it. So this is what about, but after all later on what happened, उसके बाद में फिर से थोड़ी देर के बाद में ये पता चला कि अर्थ राउंड भी नहीं है। Now you must be thinking कि अभी ये क्या है? It is not round, it is little bit like orange. Now you have seen this orange, देखो ये orange round नहीं है, थोड़ा सा यहाँ से देखो उसको ऐसे फूल गए ऐसे, ठीक है ना? तो थोड़ा सा मतलब it is not even round, it is not even completely spherical, like it is like this orange shape. Okay, the earth is like this orange shape. Now it is little bit flat at top. फ्लैट मतलब ऐसे फ्लैट एट टॉप एंड बॉटम से थोड़ा सा बल्क है और इन द मिडल आल्सो लिटिल बिट। ओके, तो our earth looks like this orange. Okay, and later on, अभी नहीं, ओके, थोड़े दिनों के बाद में जब आप स्कूल भी आ जाओगे, आई विल टीच यू मोर अबाउट दिस अर्थ। ओके, तो जब हम लोग उस अर्थ को 2 हाफ्स में करते हैं, see this is an orange actually, okay, this is orange, but I will teach you when you do this half ना, तो ये क्या हो जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? सो इट इज मोर इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट अर्थ। ओके, तो अभी तो ये हो गया है क्लियर कि हमारा जो अर्थ है इट इज समथिंग अराउंड लाइक दिस ऑरेंज, लाइक एन ऑरेंज, एंड इट इज नॉट कंप्लीटली राउंड ऑल्सो, ठीक है? वो राउंड भी नहीं है और वो टोटली नॉट लाइक मतलब राउंड भी नहीं है और फ्लैट भी नहीं है, इट इज समथिंग अराउंड लाइक ऑरेंज। तो ये हो गया शेप के बारे में। अब आता है कि अर्थ में क्या क्या है, अर्थ पे क्या क्या है। तो अगर इसकी पढ़ाई हम लोगों को करना है, अगर इसकी जानकारी हमको चाहिए, मींस इफ वी वांट टू नो मोर अबाउट अर्थ, हम अर्थ पे बार बार स्पेस में तो नहीं जाएंगे, इजंट इट? इज इट इट इज कन्वीनियंट? मतलब क्या ये
बहुत दिक्कत वाली बात है ना कि हम अगर स्पेस में बार बार तो नहीं जा सकते हैं कि अर्थ के बारे में जानकारी लेने के लिए हम लोग बार बार अर्थ में स्पेस में नहीं जा सकते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ग्लोब बनाया। नाउ दिस इज कॉल्ड एज ग्लोब। ओके, ये ग्लोब क्या होता है, मतलब जैसे कि हमारा अर्थ बहुत ह्यूज है साइज में, मतलब बहुत ही बड़ा है, इजंट इट? तो हमको उसको पढ़ने के लिए, टू लर्न मोर अबाउट अर्थ वी नीड अ मॉडल। ओके, तो ये मॉडल क्या है, तो स्टडी करने के लिए एक मॉडल बनाया गया। तो ये मॉडल क्या है, दिस इज अ ग्लोब, अ राउंड मॉडल ऑफ एन अर्थ, मतलब अर्थ के जैसे ही है। क्यों? देखो यहाँ पे यू कैन सी देर आर मेनी कंट्रीज ऑल्सो ऑन दिस, यू कैन फाइंड आर इंडिया ऑल्सो ऑन दिस, सी isn't it? So ये ऐसे है ना, पढ़ाई करने के लिए ऐसा एक मॉडल बनाया गया है। तो ये ग्लोब क्या करता है, ये हमें बताता है कि कितने ओशंस है, उसके बाद में कितने कंट्रीज है, ओशंस हाउ मेनी ओशंस आर देयर, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर, हाउ मेनी मतलब कॉन्टिनेंट्स आर देयर, एंड कैसे उसको कहाँ कहाँ पे है और कैसे है, ये सब हमको ये ग्लोब के थ्रू पता चलता है। मीन्स लुकिंग एट द ग्लोब वी कैन अंडरस्टैंड हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर, कॉन्टिनेंट्स आर देयर, oceans, rivers, many more things. Okay, we can understand by this globe, we can study more about earth from this globe, isn't it? So but वहां पे ये तो हो गया है, लेकिन इसके ना कुछ इसमें कुछ दिक्कत भी है, मतलब डिसएडवांटेजेस भी है। तभी वो क्या है, यहाँ पे वी कैन ओनली सी हाफ ऑफ द अर्थ, जैसे मैंने इसको हाफ करके दिखाया था। अभी ये ग्लोब ऐसा है, अब मैं यहाँ पे ऐसे फेस करके देख रही हूँ तो मुझे नहीं पता चल रहा यहाँ पे पीछे क्या है। ओके, मुझे सिर्फ इतना ही भाग दिखाई दे रहा है। तो मुझे अगर उधर का देखना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, ग्लोब को ऐसे घुमाना पड़ता है। ठीक है ना, ये अच्छा तो है, इससे हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, मतलब क्या कौन से चीजों में दिक्कत आती है। ठीक है, तो क्या कौन सी दिक्कत आती है कि मुझे सिर्फ ये आधा जो है वो दिखाई देता है, मीन्स आई कैन सी ओनली दी हाफ ऑफ दिस अर्थ, आई कांट सी दी होल अर्थ एट अ टाइम। ओके, और मुझे क्या करना पड़ रहा है बार बार, अगर मुझे वहाँ का कुछ कंट्री देखना है, वहाँ के कंट्रीज देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे इसको घुमाना पड़ रहा है। मीन्स इफ आई नीड टू सी द अदर साइड ऑफ द अर्थ, व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू रोटेट दिस अर्थ बाय द हैंड। So it is not possible to study the places on the globe in detail because it is small in size. देखो अभी मुझे समझो, मानो अगर इधर इंडिया है, इंडिया में मुझे बेंगलुरु के बारे में जानना है, तो यहाँ पे देखो सिर्फ बेंगलुरु लिखा है, मुझे उसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए मुझे नहीं मिल रही। वट एवर आई नीड टू नो मोर अबाउट दिस, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो ये भी एक, क्योंकि ये बहुत छोटा साइज है। ओके, तो ये भी एक दिक्कत है, दिस इज ऑल्सो वन डिसएडवांटेजेस, इज इट डिफिकल्ट टू कैरी फ्रॉम वन। अभी समझो मुझे मान लो अभी बेंगलुरु ही बोला था तो बेंगलुरु ही बोलती हूँ। अगर मुझे कर्नाटका बेलगाम से मुझे बेंगलुरु जाना है, तो मैं क्या इसको उठा के लेके जाऊंगी? आई शुड कैरी दिस एंड गो, मतलब इसको कैरी करके लेके जा सकती हूँ क्या? नहीं ना, तो इसे हम लोग कैरी नहीं कर सकते, मतलब बहुत डिस्टेंस तक। ओके, वन प्लेस टू अनदर। अभी मुझे आपको सिखाना था तो मैं हमारा जो लाइब्रेरी है वहाँ से मैं इसको उठा के लेके आई ब्रॉट इट फ्रॉम द लाइब्रेरी, सो दिस इज ओके। बट इफ आई वांट टू टेक इट समवेयर एल्स, मतलब दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके, देन टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, तो अभी ग्लोब तो है, ठीक है, अभी इतने सारे डिसएडवांटेजेस है, इतनी सारी दिक्कतें तो आ रही है हमको, तो हम और क्या कर सकते हैं? तो फिर उसके बाद में
उसे और भी आसान बनाने के लिए, मतलब टू मेक इट मोर इजी टू अंडरस्टैंड और टू स्टडी मोर अबाउट अर्थ, we then they prepared a map. Now what is this map? I will be telling you into the next video. Till then what you should do, you should read the lesson. Children, if you go through the lesson or if you read, your reading will improve automatically, your language and your fluency will improve. So see that whenever कुछ भी हो या फिर if you want to know more and more about things, you should always keep reading on the books. So in the next video we will be learning about maps, oceans and continents. Okay, what are oceans, what are continents, what are seas, I will be telling you in the next video. So till today we learned about the shape of the earth and the globe. Okay, so I will tell you more tools to study the earth. Tools यानी कि दो दूसरे दूसरे इक्विपमेंट्स जैसे होते हैं. तो ये ग्लोब हो गया, जो ग्लोब हम लोगों ने आज पढ़ाई की है. तो अगले वीडियो में हम लोग मैप देखेंगे. अभी और भी बातें हैं जो हम लोग पढ़ाई करेंगे. तो थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे.